خود جہنم میں جا رہے ہیں۔ ابے وہ بزرگ تھے تو تیرا کیا پدرم سلطان بوچے چھت، تیرا باپ بادشاہ تھا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اپنی دیکھ، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، یہ بزرگ آئیں گے قبر میں تمہیں بچانے کے لیے، تمہارے سوالات کے جواب دینے کے لیے؟ لیکن ہاں، بعض پیر ایسے بھی ہیں باقاعدے بتلاتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز غوث پاک کی نیاز دیتے رہو، 11ویں مناتے رہو، 11ویں والا آئے گا قبر میں، ہاں 11ویں والا آئے گا۔ اور اللہ معاف کرے، وقت زیادہ ہو رہا ورنہ میں تفصیلات بتاتا۔ اعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بندے ناچیز کا پیر و مرشد مر گیا، جہنم رسید ہوا، وہ 5 وقت کی نماز کبھی بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی اس کی، اور تکبیر اولیٰ اس کی کیسے چھوٹے؟ نماز سورج بھلے نکل آئے، جب تک حضرت نہیں آئیں گے تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ ہم نے کہا ایسی نماز پڑھنی ہو تو آدمی تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کبھی زندگی میں نماز نہ چھوٹے، کہ خود نماز اس کی نوکر نہ، نماز کا نوکر نہ بنے، نماز کو اپنا نوکر بنا لے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا تھا۔ وہ اپنی تقریروں میں کہتا تھا، اللہ کی قسم، اللہ نپٹے اس سے، واللہ کی دفن کیا مردے۔ اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اپنے ملکوں میں قوالیاں بھی گاتے ہیں، اس موضوع پر قوالی بھی ہے۔ اور منکر نکیر آئے، اتنے بڑے بڑے دانت، اتنے بڑے بڑے گروز، وہ اس کی تفسیرات بتاتا تھا کہ اگر پہاڑ پہ رکھ دیں سرما ہو جائے۔ آئے اور اس سے کہا من ربک، اس نے کہا یا غوث المدد، کہا ما دینک، کہا یا غوث المدد، کہا ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، کہا یا غوث المدد۔ اتنے میں غوث پاک آ گئے، غوث پاک آئے اور منکر نکیر کو ایک ہاتھ میں منکر کے پر کو پکڑا، ایک ہاتھ میں نکیر کے پکڑا، دونوں فرشتوں کے پروں کو پکڑا اور کہا آئے ہو حساب کتاب لینے؟ تمہیں نہیں معلوم یہ ہمارا مرید ہے، یہ ہمارا چاہنے والا، ہم پیر روشن ضمیر ہیں، ہاں یہ ہماری نیاز دلاتا ہے، آئے ہو تم اس سے سوال جواب کرنے کے لیے؟ اب منکر نکیر کو غوث پاک نے پکڑا، دیکھ ہٹا کھٹ، دیکھ ہٹا کھٹ، دیکھ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اے اللہ جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں نازل فرما۔ ہمارے ان کانوں نے سنا ہے، دیکھ ہٹا کھٹ، دیکھ ہٹا کھٹ، من ربکا، من ربکا، ما دینکا، ما دینکا۔ آئے واللہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو چولے بدل کر امت محمدیہ میں نائبین رسول بنے ہوئے ہیں، پیر و مرشد کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ رب کے قانون کا تمسخر اور مذاق نہیں ہے یہ؟ بولو بولو، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ میں کہتا ہوں یہود اور نصارہ کے بھی یہ عقیدے نہیں تھے، جو اس دور کا، اس صدی کا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والا یہ بدکار بدعتی جو مریدینیوں سے راتوں کو اپنے پیر اپنے سر دبواتا، ہم نے دیکھے ہیں۔ ہم نے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کرتے، زبان کھلے گی تو حقیقتیں بے نقاب ہوں گی، اور ہمارے سامنے کوئی اپنے تقوی طہارت، اپنے مولویوں ملانوں شیخ الحدیثوں کا تذکرہ نہ کرے۔ ہمارے سامنے سارے برہنہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بندے ناچیز انہی راہوں سے گزرا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، تم تو پیر کو دیکھ کر ہی سجدہ کر بیٹھتے ہو۔ اندر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، ہم اندر کے بھیدی ہیں، ہمیں پتا ہے، تمہیں نہیں پتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں میرے عزیزو۔ یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اب بتاؤ جب ایسے لوگ امت کا بیڑا غرق کریں گے تو کافر جوتے نہیں مارے گا تو کیا حلوے ماٹے کھلائے گا؟ بولو۔ گجرات میں 25-25 30-30 کو ایک ایک گلی میں ایک ایک مزار ہے، احمد آباد ہو، گودھرا ہو، ہر جگہ۔ کیا ہوا؟ کوئی آئے بچانے کے لیے؟ بولو غوث پاک نہیں آئے؟ کیا ان کو پکارا نہیں گیا ہوگا؟ ارے وہ مشرکین جب ان کی کشتیاں دریاؤں میں پھنستی تھیں، اکرمہ بن ابی جہل دوڑے ہوئے آئے نبی کے دربار میں، کہنے لگے ہماری کشتی، ہم مکے سے بھاگے تاکہ ہم آپ کے پناہوں میں نہ آ سکیں، ہماری کشتی جب دریا میں پھنسی ہم نے اپنے بتوں کو پکارا، ہمیں کسی نے نہیں بچایا، ہم نے اپنے بتوں کو پھینک دیا۔ اب لوگوں نے کہا یا رب محمد، اے محمد کے رب ہمیں نجات دے دے۔ اللہ نے، محمد کے رب نے کشتی باہر کی۔ میرے دل میں آیا کہ جب محمد کا رب اس دریا میں ہماری نگہبانی کر سکتا ہے تو محمد اسی رب کی طرف تو بلا رہا ہے، صلی اللہ
अलैहि वसल्लम, फिर हम उससे क्यों भागें, चलो उसके पास। दौड़े हुए आए, दामने रिसालत से सिमट कर रोने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन? अबू जहल जैसा दुश्मन रसूल, उसका बेटा इकरमा बिन नबी जहल। अल्लाह ने उसे जन्नतों से हमकिनार किया। यह है ईमान की दौलत। पल भर में रत्ती, पल भर में माशा, जर्रे को आफताब, आफताब को जर्रा बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, दुनिया और आखिरत की ऐश और खुशियां चाहते हो, जिंदगी बेहतरीन बसर करना चाहते हो, रब्बे जुल जलाल की कसम है, सही मोमिन बन जाओ। इस ईमान का फल बहुत मीठा मिलेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। रब का फरमान सुनो, अल्लाह फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, मर्द हो या औरत, जो भी ईमान लाए और नेक अमल करे, वह हुआ मोमिन, और वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, तो हम उसे मुकद्दस और पाकीज़ा, साफ और सुथरी, चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमाते हैं। किसका कलाम है ये? बोलो, जुम्मन का, शुभराती का, मुल्ले का, वाइज का, मौलवी का? ना, ये अर्श वाले रब का कलाम है, उसका कुरान है, उसका फरमान है कि जो अमल सालेह करेंगे, नेक अमल करेंगे और सही ईमानदार होंगे, मर्द हो या औरत, अल्लाह उन्हें पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएगा। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और वो जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक टूटा फूटा, उससे अच्छा बदला हम आखिरत में उन्हें अता फरमाएंगे। दुनिया भी बन रही है और आखिरत भी, और उसकी गद्दारी करके दुनिया भी मिट रही है और आखिरत भी। ऐसा ना हो कि हम काफिरों के हाथों मारे जाएं इसलिए कि हम मुसलमान हैं, काफिर हमें मारे इसलिए कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह के यहाँ जाएं और अल्लाह कह दे तू तो मुसलमान ही नहीं था, तो हम यहां से भी गए और बोलो क्या होगा हमारा हश्र। इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान को दुरुस्त करो, अपने ईमान को सही करो। सूरह अन-नहल आयत नंबर 97 की यह आयत है। इसी तरह से नंबर 3, अहले ईमान मोमिनीन हकीकी का अल्लाह तबारक तआला दिफा फरमाता है। कैसे दिफा? जो मोमिन होते हैं सच्चे पक्के, अल्लाह उनका दिफा फरमाता है। कैसे? उनको ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है, रोक देता है, या आ गई है, ईमान की वजह से अल्लाह उसको आसान कर देता है। नंबर 1। नंबर 2, काफिर उसके ऊपर हमला करने वाला है, अल्लाह उसको वहीं अंधा कर देता है, वहीं दिफा फरमाता है मोमिनों से, सालिहीन से अल्लाह दिफा फरमाता है। अल्लाह फरमाता है सूरह हज आयत नंबर 38, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह अपने मोमिन बंदों का दिफा करता है, दिफा करता है दुश्मनों से, परेशानियों से, दुखों से, इन सब को मोमिनों से दूर रखता है। आज हम काटे पीटे जा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि हमारे दिलों में ईमान, बोलो, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। रब फरमा रहा है अक्सर व बेशतर ईमान के दावेदार मुशरिक, शिर्क कर रहे हैं। फिर कहां से ये हो? मेरे अजीजों, इज्जत व मंजिलत भी यही ईमान का समरा है। ईमान के बदौलत इज्जत व मंजिलत मिलती है। अल्लाह फरमाता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम गम न करो, फिक्र न करो। मुसलमानों, मोमिनों, तुम ही सरबुलंद होकर रहोगे, इज्जत तुम्हें मिलेगी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 139। इसी तरह रोजियों का सरचश्मा, खैरात व बरकत, रब की रहमतों का सरचश्मा कहाँ है? ईमान के अंदर है। ईमान का समरा यह है कि अल्लाह रोजियों के दरवाजे खोल देता है। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है वलो अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। सूरह आराफ आयत नंबर 96, कि अगर ये बस्ती वाले अल्लाह के ऊपर ईमान लाते, अल्लाह से डरते, तक़वा अख्तियार करते, बुराइयों से बचते, अल्लाह फरमाता है हम आसमान से रोजियों के दहाने खोल देते और जमीनों के सीने खोल देते उनके लिए। एक छोटा सा काम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने सरजमीन सऊदी अरबिया पे किया। एक तौहीद के नारे को बुलंद किया, शिर्क के मज़ाहिर और उसके निशानात मिटाए। इसी ममलकत सऊदी अरबिया से तौहीद का गलबा है, सुन्नत रसूल का गलगला है। आज क्या हो रहा है? गोल्ड, ब्लैक गोल्ड जमीन से निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बोलो, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है?
ब्लैक गोल्ड पेट्रोल निकल रहा है कि नहीं कर रहा है? ये केलों के छिलके चाटने वाले इनके बाप दादा हिंदुस्तान बर्रे सगीर जा जा करके सूखी रोटियां बोरियों में भर भर कश्तियों से लाकर भिगो कर अपने बच्चों को खिलाने वाली ये कौम है। जब तक गुंबद और कुब्बे पूजती रही तब तक गुर्बत का आलम यह था कि हाजियों के थैले और हाजियों की जेबें काटते थे यही अरब। लेकिन जब अल्लाह के फजल करम से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की दावत से यही लोग तौहीद और सुन्नत से आशना हुए, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का गलबा किया और सुन्नत को गालिब किया, रब्बे जुल जलाल ने नेमतों के खजाने खोले हैं कि नहीं खोले हैं? बोलो, अमन है कि नहीं है? चैन है कि नहीं है? बैंक में थैले भर के नोटें ले आओ, कोई पूछने वाला है? तुम्हें तो बैंक का मुलाजिम ही लुटा देगा। हमारे यहाँ तुम बैंक से रुपया लेके चलो, रास्ते में तुम्हें 10 के लिए तुम्हारा खून कर देगा। दुकानों को तुम सिर्फ पर्दे गिरा के चले जाते हो और नमाज पढ़ के आते हो, कोई एक हब्बा छूता है? कहां है ये अमन, कहां है ये सुकून? ये इसी तौहीद की बदौलत है। मुसलमानों, दुनिया के सामने एक तजर्बा मुशाहदाती नमूना तुम्हारे सामने मौजूद है। ए इस्लामी मुल्कों के सरबराहो, ए बादशाहो, ए हुक्मरानों, सऊदी अरबिया को गाइड आइडियल बनाकर यहां भी तौहीद के गलगले करो और फिर आराम से चादर तान के सो। तुम्हें कोई पूछने वाला? अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कौन? अल्लाह करेगा। लेकिन दिल हो तो समझें, आंख हो तो देखें, कान हो तो सुनें। मुशरिक तो जानवर होता है, बल्कि जानवरों से भी बदतर होता है। क्या क्या बताएं हम? अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ईमान लाओ, अल्लाह से डरो, तुम्हारे लिए रोजियों के ऐसे रास्ते बनाएगा और उन राहों से तुम्हें रोजियां अता फरमाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि ये रोजी कहां से आ रही। किसकी बदौलत? बोलो, ये ईमान का समरा है, ये ईमान का फल है। सूरह अत-तलाक़ आयत नंबर 3। अल्लाह मोमिनों का दोस्त होता है और मोमिन अल्लाह के दोस्त होते हैं। और जो अल्लाह जिसको अपना दोस्त बना ले, उसका क्या कहना? अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मोमिनों का दोस्त है और उन्हें जुल्मतों से निकाल कर रोशनी अता फरमाता है। तो मोमिनों, सब मोमिन अल्लाह के दोस्त हैं, सब मोमिन अल्लाह के दोस्त हैं। इसी तरह बहुत सारे ईमान के समरात हैं, बरक़ात हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, सही मोमिन बनो। पूरा कुरान भरा है, उठा करके देखो कि अल्लाह गलबा, सल्तनत, रोज़ी, आशाइश, नेमत, जन्नत, हूरें, सब कुछ। वल्लाह, तुम सही मोमिन बन जाओ। हवाएं, फजाएं, घटाएं, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सब कुछ तुम्हारे फर्मा बरदार बन जाएंगे। तुम इशारा करोगे, तुम्हारे पीछे पीछे सब चलेंगे। लेकिन तुम सही मोमिन बन जाओ। अल्लाह हम सबको इन समरात और इन बरक़ात के हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए और हम सबको हमारे दिलों के अंदर सही ईमान अता फरमाए, जो ज़ुबान से इकरार हो, दिल में तस्दीक हो, अमल से उसका इजहार हो। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है कि मौलाना या मौलवी के क्या माने हैं, कौन सा लफ्ज़ अपने आलिम के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल मौलाना मौलवी कोई हर्ज नहीं है, आमतौर पर लोग कहते हैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मौलाना के माने रहनुमा के हैं, रहबर के हैं, इसलिए को कह सकते हैं, कोई हर्ज इसमें नहीं है। हमारे आलिम कहते हैं कि जो कलमा पढ़ लिया वो ज़रूर एक दिन जहन्नम से निकाला जाएगा। क्या कलमा पढ़ लेना जन्नत की दलील है? अगर दलील न होती तो आप अपने चचा अबू तालिब से बात न कहते कि मेरे कान में धीरे से पढ़ लो कलमा, मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत बनूंगा, खा वो कितना भी बड़ा गुनाह किया हो। कलमा की बरकत से जहन्नम से ज़रूर निकाला जाएगा। क्या ये बात सही है? बेशक कलमे की ये फजीलत है, लेकिन कलमा पढ़ने का मतलब क्या है? कलमा पढ़ने तो वाजपेयी जी से भी कलमा पढ़वा लीजिए आप, जनाब बाल ठाकरे भी पढ़ लेंगे, बिल क्लिंटन भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। वो ला इलाहा तो कहते ही हैं, लेकिन फिर भी शिर्क करते हैं। तो कलमा पढ़ना ये नहीं कि ज़ुबान से कह दिया। इकबाल कहते हैं ज़ुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़ुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं।
میرے بھائیوں زبان سے کلمہ کہنا کافی نہیں ہے. اور جہاں تک ابو طالب کی بات ہے وہ ان کی خصوصیت الگ تھی. ابو طالب نے جو قربانیاں دی ہیں, آج یہ کلمہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دینے والے ایسا کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایک خصوصی چیز ہے, وہ ان کے لیے ہے.